Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I am Jemima, मैं जमाइमा हूँ, your pastor's favorite grandchild. आपके पासबान की सबसे प्यारी पोती। It's an honor and privilege for me to bring today's message to you. मेरे लिए बहुत सम्मान का और एक अच्छा अवसर मिला है मुझे कि मैं आज तुम्हारे सामने प्रचार करूं। I never thought I would be preaching, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रचार करूंगी, but I've grown up with some amazing pastors and leaders who have mentored me and helped me take this step. पर मेरा परवरिश ऐसे अच्छे अद्भुत ऐसे पासबानों और अगुवाओं के बीच में हुआ जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया और ऐसा पालन पोषण किया कि मैं एक ऐसा कदम उठाऊं। I want to extend my thanks for all the prayers and support I have received by Kishore Uncle and Ajama. मैं मेरा सारा धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ किशोर अंकल को और अजमा को जिसने मुझे ये मौका दिया और मेरी सहायता की है। They helped me a lot to prepare this message. उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है इस वचन को तैयार करने के लिए। And also thanks to Dolly auntie who is translating for me. और डॉली आंटी के लिए भी धन्यवाद जो मेरा अनुवाद कर रही है। So let's bow our heads and pray and ask God to prepare our hearts for today. तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे दिलों को तैयार करे वचन सुनने के लिए। Dear Heavenly Father, we come to you after a praise, Lord. And Lord, everything that I speak, Lord, it's not from me, Lord. And you've helped me so much, Lord, in making this message, Lord, that the words come out through me, Lord. And you help me, Lord, speak what you want your people to hear, Lord. And you open our hearts, Lord, and you keep our hearts ready, Lord, and take in whatever you have to say to them today, Lord. And we bless you, Lord, and we bless your precious name, Lord. In your name we pray. Amen. Amen. In today we live in very uncertain times. आजकल जो हम जी रहे हैं बहुत अनिश्चित ऐसा समय चल रहा है। Our world today is in deep crisis and despair. हमारा संसार जो है बहुत भारी संकट में और परेशानियों में है। We used to live in a very easy, steady routine. हम एक बहुत आसान सा रोज वैसा ही होने वाला दिनचर्या में गुजरते थे रोज। But all our world has now been toppled into chaos. पर अचानक से हमारे जिंदगी में पूरा उलट पुलट हो चुका है सब And in the कुछ। midst of all this misery, और इन सब कष्टों के बीच में I have a question for you. मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के Are लिए। you living and abiding in God's hope? क्या आप परमेश्वर की आशा में बने हुए हो Or are you still following the world into fear? या आप संसार के पीछे चल रहे हो डर के मारे? And what is hope? और आशा क्या है? In today's world, when we say we hope for something, आजकल के ज़माने में या आजकल की दुनिया में यदि हम कहते हैं आशा करना, उसका मतलब क्या है? it's like saying we wish or desire for something. इसका अर्थ ये होता है कि हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, मनसा रखते हैं। But it's not a guarantee that we'll get what we hope for. लेकिन ज़रूरी नहीं है, इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि जो हमने इच्छा किया है वो ज़रूर होगा। But according to various scriptures, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के वचनों के अनुसार when they say about the word hope, जब हम इस वचन के बारे में देखते हैं आशा, it means expected confidence. इसका अर्थ ये है कि आपको पूर्ण तरीके से निश्चित होकर आशा रखना है। You expect everything confidently. आशा रखना है कि जरूर पूरा होगा। And we have our hope in God that everything that we hope in will come true. और हमारा आशा जो है परमेश्वर में है, तो इसका अर्थ ये है कि जो भी हम आशा करेंगे वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। So even if we live in this world full of turmoil, तो चाहे यदि हम अभी ये पूर्ण उलट पुलट संसार में जी रहे हैं, we can live in hope and hold on to God's promises. हम आशा में लगे रह सकते हैं और परमेश्वर के वचनों पर, उनके वादाओं पर विश्वास रख सकते हैं। Let's see hope from a worldly perspective. हम देखेंगे आशा के बारे में ये संसार क्या कहती है। In the book of Lamentations, विलाप गीत की किताब में अगर हम देखेंगे, the book has been written in 5 poems, विलाप गीत का किताब में 5 ऐसे अलग अलग कविताएं हैं, which is written in 5 chapters. 5 अध्याय के रूप में लिखे गए हैं। And they are the laments of the Jewish people और ये जो विलाप है वो यहूदी लोगों का है who are in the Babylonian exile. जिन्हें बेबीलोन में ले गया था।
and Babylon had just destroyed the holy city of Israel. और बाबिलोन ने जो है इज़राइल का जो पवित्र मंदिर है उसे नाश कर दिया था। And people there were dying of swords and hunger, and it was just the whole city was in massive turmoil. और वहाँ के लोग जो है मौत में तलवारों से मरते थे, भूख से मरते थे, और वहाँ पे पूर्ण तरीके से विनाश था। And when you read the book of Lamentations, और जब आप विलाप गीत की किताब को you पढ़ते can हैं, feel the darkness, the fear, the helplessness of people. आप समझ सकते हैं वहाँ के लोगों का अंधकार, उनका निराशा, उनका जो तकलीफ है वो आप समझ सकते हैं। Let's read Lamentations 1:1-3. आइए हम पढ़ेंगे विलाप गीत का पहला अध्याय, पहले वचन से तीसरे वचन तक। जो नगरी लोगों से भरपूर थी, वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वह फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। The city that was the queen of all provinces ये जो शहर सब प्रांतों में जो रानी थी, was now lying in distress. वो अपूर्ण तरीके से विनाश में थी। Now we can compare our situation today to theirs. और अब हम हमारी तुलना उनकी उस समय के साथ तुलना कर सकते हैं। But we can see that our world today is also full of death and murder and suicide. और अब हम देखते हैं कि हमारे भी जिंदगी में हम देखेंगे तो इस समय सब तरफ हम देखते हैं मौत, खून खराबा, आत्महत्या हो रही है। We have protests going on, floods in various cases. बहुत सारे जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर बाढ़ आई हुई है। Our whole world is in chaos. और हमारा पूर्ण संसार जो है वो उलट-पुलट हो चुकी है। But let's read Lamentations 3:21-25. आइए हम पढ़ेंगे विलाप गीत का तीसरा अध्याय 21 वचन से 25 वचन तक। विलाप गीत का तीसरा अध्याय 21 से 25 वचन। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, हम यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। So what we hope for, तो जिस बात की हम आशा रखते हैं, or what we should confidently expect, या जिस बात को हमें पूरी तरीके से विश्वास करना है कि वो जरूर होगा, is that God is great, वो ये है कि परमेश्वर महान है, and because of His love, और उसके अपार प्रेम के कारण we will not be consumed, हम ऐसे ही नाश नहीं होंगे, and His compassions never fail. और उनकी जो दया है वो सदा के लिए बनी है। His love, grace, and compassion उनकी प्यार, उनकी दया और उनका अनुग्रह जो है is new every morning. वो हर सुबह के लिए नया होता है। So though thousands may fall at our side, तो चाहे 1000 हमारे निकट गिर and जाए 10,000 at our right hand, और 10,000 हमारे दाहिने but ओर we गिरे, will not be consumed, पर हमारा कुछ विनाश नहीं होगा, because our hope is in the living God. क्योंकि हमारी आशा जो है जीवित प्रभु पर है। So let's dive deeper and तो आइए हम और गहराई में देखें look at hope from an internal perspective. और हमारे आंतरिक रीति से हम आशा के बारे में देखें। This season has got a lot of discouragement. इस समय में हम देखते हैं बहुत जगह निराशा है, There is a loss of job, लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया है, crushed dreams, बहुत सारी सपने जो है वो टूट चुके हैं, financial problems, आर्थिक समस्याएं हैं, and maybe even disappointment in your 10th and 12th exams. और हो सकता है निराशा आपकी 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट है उसमें। But we can have our hope in God.
पर हमें हमारी आशा प्रभु में रखना है। And even our personal problems can be solved by putting our hope in God. और हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं जो है वो भी हल हो जाएंगी जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, Because our God is faithful. क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। And Paul says let's see what Paul says in Romans 12:12. आइए हम देखिए पौलुस क्या कहता है रोमियो का 12 अध्याय उसके 12वां वचन में। रोमियो का 12 अध्याय 12 वचन, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। So this man, तो ये मनुष्य who was the greatest missionary of all time, जो एक बहुत महान परमेश्वर का सेवक रह चुका हर समय अब तक के लिए, he had gone through stonings, उसके ऊपर पथराव किया गया, he had been dragged into courts, उसको अलग अलग जगह कचहरी में ले गया गया, been shipwrecked, उसकी जो नाव थी वो डूबी थी। he went through so difficult life. वो इतना समस्याओं से गुजरा अपने जिंदगी में, And yet he talks about the joy of hope. फिर भी वो कहता है परमेश्वर की आशा में आनंदित रहो, And still he talks about patience in affliction. और फिर भी वो कहता है क्लेश में स्थिर रहो। So even though you are suffering right now, तो यदि आप अभी भी समस्याओं से गुजर रहे you हो, are not forsaken. आप ऐसे ही छोड़े गए नहीं हो, You may be struck down, आप शायद नीचे टूट चुके हो, but you are not destroyed. फिर भी आप पूरी तरीके से टूटे नहीं हो। Put your hope in the Lord, अपना विश्वास परमेश्वर पर अपनी आशा बनाओ, for He is faithful in all of His promises. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है उसकी सारी वादाओं में। In the Bible it says Jesus intercedes for us. और बाइबल में कहा गया है कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, He prays for us. वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, He knows all our thoughts and our problems. वो हमारी सारी समस्याओं को जानते हैं, वो हमारे सारे विचारों को समझते हैं। He's gone through everything that we've been through. जो सब बातों से हम गुजरे हैं उन सब बातों से वो भी गुजरे हैं। He's felt depression and loneliness, and he knows the overwhelming sense of hopelessness. उन्होंने भी तनाव से दिन निकाला है, उन्होंने भी अकेलापन देखा है, वो भी ऐसी गहरी अंधकार और ऐसी समस्याओं से गुजर के दिन निकाल चुके हैं। He felt all that when he bore our sins on the cross. वो ये सब बातों से गुजरे जब वो क्रूस पर लटके थे। But because of that cross, लेकिन उस क्रूस के कारण we can today have hope. आज हमें एक आशा है। Amen. So let's hold on to that hope. तो आइए हम उस आशा को धरे रहें। Though our world is in chaos, चाहे हमारा संसार पूरा उथल-पुथल हो चुका है, though our personal life has discouragement and disappointments, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में निराशा हो और सब कुछ उल्टा लगे, let's hold on to the hope that God has given us. आइए हम उस आशा में बने रहे जो प्रभु ने हमें दिया है। So let's bow our heads and pray तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें and ask God how to help us learn to live and abide in His hope. और प्रभु से मांगे कि हम कैसे उनकी आशा में बने रहें। Dear Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for giving this time, Lord, and thank you for the word that you've given us, Lord. And Lord, as these people, Lord, and we all have needs, Lord, and we need your comfort, Lord. You give us a new hope, Lord, and you've given us so much peace, Lord, and you've given us hope, Lord, and you've given us comfort, Lord. And you're the God of compassion and faithfulness, Lord. And we thank you for all that, Lord. And you listening to all our cries, Lord, and you've given us a bright future, Lord. And we thank you, Lord, and we bless your name, Lord. In your name we pray. Amen. Now may the God of hope कि अभी आशा का परमेश्वर fill you with joy आपको पूरी तरीके से खुशी से भर दे and in peace, और शांति से, in believing that you may abound कि विश्वास के साथ कि तुम बढ़ जाओ in hope परमेश्वर की आशा में by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। So God bless you, and we will meet you next Sunday. और प्रभु आपको आशीष करे। हम अगले हफ्ता आपसे जरूर मिलेंगे। I would like to share a small testimony of hope. मैं एक छोटी सी गवाही विश्वास के आशा के बारे में बताना चाहती हूँ। So during 10th grade,
जब 10वीं पढ़ाई कर रही थी मैं, of course, after a little close after that, थोड़े समय उसके पश्चात everyone starts asking you, सभी जन आके पूछना शुरू करते हैं, now what are you going to do with your अब life? इसके बाद तुम तुम्हारे जीवन में क्या करोगे? And I didn't know what to do with my life. और मैं नहीं जानती थी मुझे क्या करना है जीवन में आगे। I never thought about what I should do next. हम कभी नहीं सोची कि मैं इसके बाद क्या करूँगी। And then I thought I would just wait, and slowly 12th standard came. और फिर मैंने सोचा नहीं मैं ऐसे ही इंतजार करूंगी, और धीरे धीरे करके 12वीं का कक्षा आ गया। And of course, everyone asks you, what are you going to do now? और हाँ, ये सच बात है कि सभी जन आकर पूछते हैं अब क्या करोगी तुम? Your neighbors, तुम्हारे पड़ोसी, people you don't even know. लोग जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो, As soon as you tell them you're done with 12, जब तुम उनको बोलते हो कि 12वीं खत्म हो गई है, everyone will ask you, what are you going to do with your life? सभी जन आकर पूछना शुरू करते हैं कि क्या सोचा है, अब आगे क्या पढ़ाई करना है। And I had no clue. और मेरे पास उसके बारे में कोई जवाब नहीं था। So I went into college, फिर मैं कॉलेज गई and I took some counseling classes, and whatever they said, I picked up all my subjects, and I focused on those subjects. और मैंने अपने सलाहकार के साथ गई, बात करने के बाद जो भी उन्होंने विषय बोला वो विषय लेकर मैं आगे अपना पढ़ाई करने के लिए केंद्रित किया अपना ध्यान को। And even after 1-2 years in college, I still had no clue. और कॉलेज में जाकर भी 1-2 वर्ष तक मुझे कुछ समझ में नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। I even thought I would take up nursing, मैंने ये भी सोचा कि मैं नर्सिंग करूँगी, but as soon as I went into the class, I knew this was not for me. अपनी माँ जैसा। लेकिन जब मैंने वो क्लास में जाने लगी तब मुझे पता चला कि ये मेरे लिए नहीं है। I didn't like anything about medicine or nursing or anything related to nursing. मुझे दवाई हो या फिर नर्सिंग का जो भी चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं उसमें से किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। And I was so lost, and I felt like all alone in this world trying to figure out what I'm supposed to do. और मैं इतनी खो गई थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मुझे इसमें क्या करना है। I remember as a teenager, of course, the first person, you don't ask a person, you'll ask Google, what am I supposed to do with my life? तो एक जवान होने के नाते मैं जानती हूँ कि हम लोग कोई व्यक्ति से नहीं, लेकिन हम गूगल से ज़रूर पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में। I took so many personality tests and career tests. मैंने इतने सारे व्यवसाय का या फिर अपनी व्यक्तित्व जानने के लिए मैंने कितनी सारी परीक्षाएं दी। And so many tests, and nothing matched something. I didn't find passion in anything, any of those work or career, like all the recommendations they've given. तो ये सारे परीक्षाएं लेने के बाद जो भी वो लोग बताते थे कि ये व्यवसाय तुम चुन सकते हो, उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। I was so lost. I would ask people and how they like their career and what they're doing. मैं लोगों से भी मिलती, उनसे भी बात करके पूछती कि तुम्हारा व्यवसाय कैसे चुने, तुमको कैसा लगता है। I did this all for 5 years. और मैं ये सब चीजें 5 वर्षों तक करती रही। And it just feels so depressing. और इतना निराशाजनक बात है ये। And it's so worse when everyone else around you, it just looks like everyone knows what they're doing with their life. और इतना और बुरा लगता है जब जानते हो कि आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं उन सभी ने अपना करियर चुन चुके हैं और उन्हें पता है कि वो क्या करने वाले हैं। They want to be doctors, lawyers, engineers. उन्हें डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। And I didn't like any of those things. और मुझे इनमें से किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। So I thought I was absolutely hopeless, and I was like, okay, God, whatever you pick for me. I was done with all my research after so many years of putting all this work by myself. तो मैं अपना पूरा खोज करके परेशान हो चुकी थी और इतने वर्ष तक अपना खोज करने के बाद मैं निराश हो गई थी और मैंने कहा प्रभु मैं ये सब आपके हाथ में छोड़ती हूँ। And then I just focused on my studies in college. और सिर्फ मैं अपना ध्यान अपने पढ़ाई पर और कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। And I graduated with great grades. और फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुई मैं। I even got to do my whole graduation online during the lockdown in India with my family. और मेरा पूरा ग्रेजुएशन का जो बात था वो मैं यहाँ पे इंडिया में कर पाई लॉकडाउन के बीच में अपने परिवार के साथ। And I even got
my whole since my grade was good, I got to graduate with honors. और क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे इसलिए मुझे ग्रेजुएशन में सम्मानित किया गया I also got the presidential list in my college. और हमारे राष्ट्रपति के लिस्ट में भी मेरा नाम डाला गया। So I know the hopeless struggle that I've gone through. तो मैं जानती हूँ ये निराशाजनक जो क्लेश है जिससे मैं गुजरी हूँ And I went for it for 5 years. और मैं इसमें से 5 वर्षों तक गुजरी। So to all the students who just got their 10th and 12th exam results, तो सारे बच्चों को जिसने अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मिला है, don't stress out. अब निराश मत हो जाओ, Put your hope in the Lord. अपना आशा परमेश्वर पर बनाए रखो। Jeremiah 21:11 says, यिर्मयाह का 29 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, For I know the plans I have for you, declares the Lord. क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, परमेश्वर की यह वाणी है। Plans to prosper you and not to harm you. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है And plans to give you hope and a future. और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। And God knit you in your mother's womb with a plan. और प्रभु तुम्हारा माँ के गर्भ में ही तुम्हारे एक विचारों के साथ तुम्हारा पूरा भविष्य की तैयारी करके रखता है। He has created a perfect, unique plan and a life just for you. और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए व्यक्तित्व रूप से एक अलग सा भविष्य और योजना बनाया है। Put your hope in the Lord and everything will work out exactly when it's supposed to. परमेश्वर पर आशा बनाए रखो और वो सब कुछ सही समय पर वो पूर्ण करेगा। Don't stress or think too much about it. बिल्कुल ऐसे सोच सोच कर अपने आप को निराशा में मत ले जाओ। Don't overwhelm yourself with it. घनी अंधकार में और समस्याओं में मत रहो। Trust in the Lord and He has a beautiful plan for your life. परमेश्वर पर भरोसा करो क्योंकि उनके लिए आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाए रखा है। And I am leaving in a few days. और मैं अब थोड़े दिनों में जा रही हूँ, So please pray for me. तो मेरे लिए प्रार्थना में जरूर याद रखिए। Keep my family in your prayers. हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना में याद रखिए। And I always remember you and we always pray for you. हम हमेशा आपको याद करते और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। I really miss that I didn't get to see most of you this time. और मैं सच में बहुत ऐसा मैं मानती हूँ, मैं मुझे इस बार बहुत लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। But I anticipate in coming soon and seeing all of you when all this is done. और मैं आशा करती हूँ मुझे जल्द वापस आने मिलेगा और मैं सबको ये सब खत्म होने के बाद जल्दी आमने सामने आप सभी को मिलूंगी। So my end message is put your hope in God. तो मेरा जो समाप्त करते हुए मेरा संदेश ये है कि अपनी आशा प्रभु पर बनाए रखो। प्रभु आपको आशीष करे।